Now today in this lecture I will start the next topic. The next topic is the general form of line. So that is the general form of line. General form of line. So students, you see what is the general form? That is ax plus by plus c is equal to 0 is the general equation of line, general form of line. Now the problem is you have to convert this general form into the different form. So first is to convert the general form into slope intercept form. अब आपको इसको slope intercept form में convert करना है. And you know what is the slope intercept form? वो होता है y is equal to mx plus c, where m is the slope of the line and c is the intercept made by the line on the coordinate axis, on y axis. Now, to convert this into the slope intercept form, what are the steps? This is the equation given, the general form of line. First of all, you collect the terms containing y on one side. This will gives you minus ax minus c. Then write it in this proper form, that is डिवाइडिंग बाय b, तो ये आपको मिल जाएगा. अब इससे मैं अगर कंपेयर करूंगा तो व्हाट इज m? देयर m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b एंड व्हाट इज c? दैट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b. व्हाट इज दिस m? वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y axis. Okay, now after converting this into the slope intercept form, Friends, you see now the slope is minus a upon b. तो जब आपको लीनियर इक्वेशन लाइन की जनरल फॉर्म गिवन होगी तो हाउ टू गेट द स्लोप ऑफ द लाइन? तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज माइनस a अपॉन b. व्हाट इज a? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x and what is b? that is coefficient of y. You have to remember this, how to get the slope of a line when the general form of line is given, that is minus coefficient of x upon coefficient of y. You have to remember this. You already studied the slope of line. One was the m tan theta, another y is in 2-point form, that was y2 minus y1 upon x2 minus x1, and third is the direct to write the slope of line when the general form of line is given. Now after this, the second is to convert into intercept form. Intercept form of line. अब आपको इस जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है. तो मैं इंटरसेप्ट की अगर बात करूंगा तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म? आप लोग जानते हैं x अपॉन a y अपॉन b, हमने प्रूव करके बताया था. x upon a y upon b is equal to 1, where a and b are the intercepts made by the line on x axis and y axis respectively. So therefore how to convert this? The first step is इसको ट्रांसफर कर देना है, इस फॉर्म में बनाना है. x y साइड में कांस्टेंट मान लगाना है. अब इसको 1 बनाएंगे तो मैं 1 बनाने के लिए इसको माइनस c से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय माइनस c. ये माइनस c से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया. अब इसको ऊपर x लिखना है तो बन जाएगा माइनस सी अपॉन ए, इधर y हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी और इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस? माइनस सी बाय ए, एंड ऑन y एक्सिस दैट इज माइनस सी बाय बी. तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. नाउ द थर्ड इज कन्वर्ट द लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म. थर्ड केस में नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखना है? नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म जिसका नाम था आपको बताया था. नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन. व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? दैट इज x cos theta y sin theta is equal to p. What is p? Where p is the distance of the line from the origin, perpendicular distance, and theta is the angle made with the x axis. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले स्टेप में आपको ax plus by
उस कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है, एंड p इज द डिस्टेंस, को p डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस c आ जाएगा। इसके बाद यू हैव टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर होल अंडर रूट, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब मैं यहां अगर डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस a, तो बन जाएगा प्लस a स्क्वायर, एंड b स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x एंड माइनस b y, एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट एंड इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, फिर मैं इसको इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा नॉर्मल फॉर्म से, ये वाला हमारे पास p डिस्टेंस आएगा और इस a और b वाले वैल्यूज मींस x y के जो कोएफिशिएंट है यहां से मैं एंगल फाइंड आउट करूंगा, तो व्हाट इज द एंगल, ओके, वो थीटा लिखना होगा। तो कैसे, मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके। Now I will start with exercise 10.3. In the question number first, that is, this is given as question number first, बोलता है reduce the equation into slope intercept form. तो इक्वेशन आपके पास है x plus 7y is equal to 0. स्लोप इंटरसेप्ट होता है समथिंग y is equal to minus of x plus 0, और मैं यहाँ y लिखूंगा तो बन जाएगा माइनस 7 बाई एक्स एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0। नाउ व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज माइनस 1 बाई 7 एंड इंटरसेप्ट c इज 0। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड द कन्वर्ट द लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट। आई एम राइटिंग अनदर, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस, दैट इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है तो पहले स्टेप में क्या करना है, 3y इधर रखना है, इसको माइनस 6x एंड प्लस 5 बना देंगे। नाउ y कैन बी रिटन एज माइनस 6 बाय 3x एंड प्लस ऑफ 5 बाय 3। अब मुझे m लिखना है, तो व्हाट इज m, दैट इज माइनस 6 अपॉन 3 and what is the intercept, that is 5 by 3. So this is the slope and this is the intercept on y axis, and you may write directly the slope of the line minus coefficient of x upon coefficient of y. Okay. Now after this first question I will start with second. In second, reduce the equation into intercept form and their intercept on x axis. तो उसका intercept भी लिखने हैं, तो मैं लाइन आपको दे रहा हूं, दैट इज द लाइन इज गिवन एज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन यू नो द इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x अपॉन a, तो मैं x इधर रखूंगा, y अपॉन b y इधर रखूंगा, बाकी c वाले ट्रांसफर उधर कर दूंगा। इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। अब x अपॉन a बनाना है तो 4 हो जाएगा, b जो है वो 6 हो जाएगा। अगर मैं इसके इंटरसेप्ट लिखूंगा तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 आ जाएगा और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है c, मींस 4 द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड 6 ऑन y एक्सिस। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ इन केस ऑफ थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, that is reduce the equation into normal form and find the perpendicular distance from the origin and angle made with the positive direction of x axis। तो अब लाइन आपके पास ये है, अब इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और साथ में मींस इस फॉर्म में लिखना है इसको, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। मुझे p भी लाना है, अल्फा भी लाना है। तो कैसे, पहले स्टेप में मैंने बताया था ये कांस्टेंट वहां ट्रांसफर कर दें। सेकंड स्टेप क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड दिस विद कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ रूट 3 स्क्वायर, मींस 2 से डिवाइड करेंगे। ओके,
तो मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो बन जाएगा 1/2 ऑफ x दैट इज √3 ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। अब इसको कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने के बाद जो p जो डिस्टेंस है वो तो 1/2 आ गया। अब cos ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू -1/2 एंड sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2 आता है। अब मुझे यहाँ से एंगल लाना है तो स्टूडेंट्स सी cos इज नेगेटिव, sin इज पॉजिटिव, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बन जाता है दैट इज इक्वल टू 180 - 60 cos अल्फा 1/2 पे 60 पे होता है और ये √3/60 पे होता है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 - 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री का जो है वो लाइन इक्वल बनाएगी। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द लाइन इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। दिस ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।